Hello everyone. Today we are going to study your computer application specimen paper. That means we are going to solve this complete specimen paper in one shot. We will be doing the section A as well as section B. Everything we will be doing in a very clear and precise manner. So before taking you towards the solution part, I would like to take you to my YouTube channel. When you will search unlimited learning in the YouTube, then you will be able to find this YouTube channel. In this, just tap to playlist section. While you tap to playlist section, you will be firstly the playlist which will be shown to you at the start. You can just tap over it. When you tap this playlist, then you will be able to see these many videos uploaded on the subject computer, and all these videos are meant for like with respect to your semester to syllabus. Everything is as per the reduced syllabus. There is lots of practice session, MCQ sessions, important question sessions, and today like today we will be having more such sessions. So do not worry, just go with the flow as I suggest you. You will be able to complete computer applications very soon and in a very good manner. So guys, the first question which is related to your specimen paper from section A, the first question is your MCQ one, right? So आपको question one है that is entirely MCQ based. So the first question which you see is, when a primitive data type is converted to its corresponding object of its class, it is called boxing. You can either call it boxing or auto boxing, and when vice versa takes place, that means when you convert the corresponding wrapper class object to its primitive type, then that's called auto unboxing or unboxing. I hope it's clear now. Now next question is, you need to state the value of y after the following is executed. So here x is equals to 7. Now 7 is a digit. Now y is going to check whether your character is, that means your character 7 is a digit or a letter. So definitely it's going to be a digit. That's why the answer is false. Clear with this? Now moving on to the next question. This question was given in your previous year question set, which I already discussed beforehand. So you can have a glimpse of this too when you will see the playlist. Then the last video, this one is a video in which I have shared all the important questions for your semester 2 point of view. So you can check out that one. Link is also shared in the description box. You can check even over there. Now here you are supposed to write, or you are supposed to give the output of this code. Now when you are supposed to give the when you are supposed to find the index of s, that means first time when s appears in the string value. So first time string appears here, okay, s appears here, and its index value is going to be 1 or 2. Tell me कितना होगा? यहाँ पे starting में जो m है, it is having the index value 0, then I का 1 and then s का 2. So for sure it will be 2. S का क्या होगा? 2 होगा. Now next from here you are supposed to find the last index of L, यानी कि आखिरी I आखिरी टाइम ये मिसिपी वर्ड में, ये स्ट्रिंग में I कहाँ अपियर कर रहा है. So it is appearing at the end. So इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स is 10. तो जब आप 10 plus 2 करोगे, so that will come 12. So the answer is 12. I'm not getting into so much detail for this section A because आपको section B में काफी सारे question करने हैं, and that's going to take lots of time. That's why I am just trying to head towards it in very short. Next, corresponding wrapper class of int data type. What is the corresponding wrapper class of int data type? The answer is integer. I is supposed to be capital. You cannot write entire thing integer. That will be wrong, right? When you talk about the wrapper class, the first letter is capital and the rest is the full form of it. For example, character का, char, what is the wrapper class of char? So उसकी capital लिखोगे and बाकी character, right? Just like int, integer. Next question, variable that is declared within the body of a method is called the, method के body में, that is called the local variable. It's talking about the within the body of the method. Alright. Next question, identify the correct array declaration. So this one is the correct one because in here we have declared the array along with its size. So this is the correct one. You can check out the rest also. Next question, a variable that is bound to the object itself is called the, so the answer is instance variable. Next question, the access modifier that gives most accessibility, it will be of course option number B, that is public. Moving ahead with the next question. Next question is, give the output of the following code. Here you are supposed to give the output of this code. Now here, since A is a string value, so since you are writing 26.0,
whether it is numeric in nature, but still it will be considered as a string value because string consists of alphanumeric characters, यानी कि alphabets भी होते हैं and your special characters are also involved as well as digits are also involved in this. Similarly with B, it is also the string value, right? It is not the double or float value, it is simply the string value. Now here we are using the parse double function. Now it is going to change this string form into the integer, into the double form since we are using double, and it will store the double format of A in C variable, and similarly for D it will be changing or it will be parsing the value of string D into its double format and then it will store it. So finally when you will add up C plus D, so you will be getting the output in the form of double value. So what is that? So the result counts to be 100.0. So this is the answer. Moving on to the next question, wrapper class are available in dash package. So the answer is option number C, that is java.lang. Now from here I will be using Hindi as well as English so that you can understand it well. Now in section B, firstly you are supposed to take up any 4 questions. You will be having the option of 6 questions and you are supposed to take up any 4 questions. Now depending upon the way or the questions which you find easy, you must choose a question which you actually find easy and which you can solve. I mean which you are good at. Just to choose that question. अब देखो यहाँ पे first question क्या है? Here you are supposed to define a class. Okay, class बनाना है. And then class बनाने के बाद declare an integer array. Integer array बनाना है जिसका size n है. अब आप इसका size किससे पूछ सकते हो? Obviously user से पूछोगे. User बताएगा कि इसको कितना size रखना है. मतलब क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसका साइज कितना होना चाहिए, है ना, कि इतना ही साइज रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है. ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है और फिर यूजर इसके अंदर एलिमेंट स्टोर करेगा. फाइन. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट में सर्च फॉर एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूजर यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक, यानी कि आपने एरे तो बना दिया, एरे के अंदर आपने एलिमेंट्स भी एंटर करा दिए. अब आपको चेक करना है कि फॉर एग्जांपल आपके एरे के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं. लेट अस जस्ट चेक इट आउट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10, 20, 30, 40 एंड 50 है. फाइन. तो आपको चेक करना है कि इसके अंदर 80 है या नहीं. हियर यू आर सपोज टू फाइंड वेदर 80 इज प्रेजेंट हियर और नॉट, राइट. तो आप इसमें से एक एक वैल्यू को चेक करोगे. क्या लगाओगे इसमें? फॉर लूप लगाओगे. एक एक वैल्यू को जाके चेक करोगे हर इंडेक्स पे. अगर 80 प्रेजेंट होगा तो आप लिखोगे कि 80 प्रेजेंट है. हाँ जी 80 प्रेजेंट है. लेकिन अगर 80 प्रेजेंट नहीं होगा तो आप क्या मैसेज डिस्प्ले करोगे जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है? नो सच एलिमेंट. ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देना. चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस कोड को कैसे रन करें. सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे हम स्कैनर क्लास की मदद से जब इनपुट लेंगे तो वो बहुत इजी होगा. अगर आपको स्कैनर क्लास के अलावा कोई और तरीका आता है जिससे कि आप वैल्यू इनपुट ले सकते हो तो आप वो लो, लेकिन मैं यहाँ पे कम्प्लीटली स्कैनर क्लास ही फॉलो करूंगी सारे प्रोग्राम्स में क्योंकि स्कैनर क्लास सबसे आसान है और सबसे ज्यादा कम कॉम्प्लिकेशंस आपके स्कैनर क्लास में है. एक फॉर्मेट है जो आपको समझना है और इसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको आप सिमिलर तरीके से बनाओ और आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे से बनेंगे. इसलिए आई सजेस्ट कि जब आप स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन लिखनी है. ये स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए इस पैकेज से ही आएगा. तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, भले आपने स्कैनर क्लास यूज किया हो क्लास के अंदर आपके पूरे प्रोग्राम में, लेकिन अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो इसमें आपका मार्क्स बहुत कटने वाला है. तो इस वाले लाइन को अच्छे से लिख कर आना. कुछ भी मिस मत करना. मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ. स्कैनर का बस एस कैपिटल होता है, बाकी सारी चीजें स्मॉल में लिखनी है. और इंपोर्ट जावा के बाद डॉट है, उसके बाद यूटिल, फिर डॉट, फिर स्कैनर और फिर सेमी कॉलन. इस चीज को मत भूलना. इसके बाद मैंने क्लास बनाया जिसका नाम है एग्जाम. आप कोई भी क्लास बना सकते हो, बस उसका फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल. आपको ये रूल्स पता होगी, बेसिक रूल्स है. इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आस्क, ये वाली सेंटेंस लिख लो. अगर आपको पता भी नहीं अभी इसका मतलब तो बस आप मूंद कर इतना याद रखो कि इन 3 चीजों को आपको लिखना है एज इट इज. ठीक है, इसमें कोई चेंजेस मत करो. अगर आपको नहीं पता इसका मीनिंग तो उस कंडीशन के लिए कह रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ मार्क्स आप उठा लोगे. ये ट्रिक फॉलो करो. उसके बाद यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी. तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कैसा है, आपने क्या लॉजिक यूज किया. तो मैंने जो लॉजिक यूज किया इसके हिसाब से मुझे 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी. एक वेरिएबल n है जो कि क्या बता रहा है, जिसमें मैं एरे का साइज डिक्लेयर करूंगी कि एरे का मुझे कितना लेंथ रखना है, जो कि यूजर बेसिकली बताएगा कि उसे कितने एलिमेंट्स रखने हैं एरे के अंदर. वो तो यूजर की मर्जी है ना, प्रोग्रामर की मर्जी तो नहीं है. यूजर जितने वैल्यूज चाहे उतने वैल्यूज रख सकता है. फाइन. इसके बाद आई और फिर जे, इन चीजों का हम मीनिंग समझेंगे कि आखिर इसे कहाँ कहाँ यूज करनी है. इसके बाद देखो
ये वाली लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये वाला यूज ये बिना आप स्कैनर क्लास नहीं यूज कर सकते। यानी कि एक स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए ये दो चीजें हैं जो कि आपको प्रोग्राम में यूज करनी ही करनी पड़ेगी। तो आपको ये हर प्रोग्राम में लिख कर आना है, यानी कि स्टार्टिंग का समझ लो ये पूरा लाइन आपको कॉपी करना है। ये वेरिएबल वाला पार्ट वो डिपेंड करता है कि आपको रखना है कि क्या रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इन चीजों को छोड़ के जो बाकी के लाइन्स हैं उनको आपको लिखना है, उनको आप मिस आउट नहीं करोगे। और मैं अभी आपको एक प्रोग्राम के लिए समझा दे रही हूँ, फिर फर्दर और आगे प्रोग्राम्स के लिए आप बाय डिफॉल्ट खुद से कर लोगे, राइट। तो एक प्रोग्राम में क्लैरिटी बस बन जाए इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में ये सारी चीजें भी बता दे रही हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे कि हमें एरे का एलिमेंट्स डिक्लेयर करना है। तो स्कैनर क्लास आखिर यूज क्यों कर रहे हैं? वैल्यू इनपुट कराने के लिए ना। तो जब मुझे इंटीजर वैल्यू यूज करानी होती है या फिर मैं चाहती हूँ कि मुझे इंटीजर वैल्यू, जैसे कि मैं चाह रही हूँ मैं एक मेरा फॉर एग्जाम्पल एज, ठीक है, मान लो कि आपको एज नाम का वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेनी है यूजर से। तो आप कैसे इसका वैल्यू लोगे? पहली बात तो ये इंट वैल्यू है, आप सबको पता है किसी का एज फ्रैक्शन में तो होता नहीं, तो ये इंट वैल्यू है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? पहली बात तो स्कैनर क्लास का आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये एससी की जगह आप कुछ और भी ले सकती हो, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है तो आप एससी यूज करो, एससी यूज करो। इसलिए यहाँ इसके ऑब्जेक्ट को हमने कॉल करा, उसके बाद डॉट यूज किया, उसके बाद नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट आपको लिखना है इंट। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने इंट वैल्यू प्रिंट इंट वैल्यू हमें एक्सेप्ट करनी है, यूजर को इंट वैल्यू देनी है, ठीक है। तो हमने इंट वैल्यू यूज करी और बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, बस ऐसे ही आपको लिख देना है नेक्स्ट इंट। अगर फ्लोट रही तो बस एफ लिखाएगा और LAOT, ठीक है, LAOAT, बस एफ कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट स्मॉल रहेगा, फ्लोट का एफ कैपिटल होगा। और स्ट्रिंग और एरे के लिए मैं आगे समझाऊंगी, स्ट्रिंग और कैरेक्टर के लिए, सॉरी। अब आपने एक एक करके सारी वैल्यूज एंटर कर दी। मान लो कि अब देखो एन का वैल्यू तो आपको पता चल गया कि आपको कितने एलिमेंट्स रखने हैं, वो आप एन के थ्रू यूजर से रखवा लोगे कि आपको टोटल कितने, भाई आप कितने एलिमेंट्स चाहते हो सारे में। तो यूजर बता देगा कि मुझे 10 एलिमेंट्स रखने हैं, तो वो यहाँ पे असाइन कर देगा। अब इसके हिसाब से ही मैं अपने एरे का साइज भी डिक्लेयर करूंगी कि यूजर ने कहा है 10, तो इसका साइज कितना होगा? इसका साइज भी 10 ही होगा। क्लियर? इसके बाद अब क्या करेंगे हम? इसके बाद अब हम ये करेंगे, क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ पे अगर साइज नहीं डिक्लेयर कराया होता तो हम यहाँ पे लूप में हमें दिक्कत होता कोई कंडीशन रखने के लिए। अब तो हमें पता है कि हमारा साइज अगर n है तो हमारा आखिरी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से n-1। जैसे कि आपके पास 5 एलिमेंट है तो आपका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक जाएगा। सिंपल है। तो आप लूप लगा दो, लूप लगा दो, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आपके 0 इंडेक्स से लेके आपके n-1 इंडेक्स तक रखाएगा। सब वैल्यूज पे आप मतलब एरे के 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखनी है, फिर 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखनी है, 2 पे क्या रखनी है, ऐसा वैल्यूज एंटर करोगे। और एससी डॉट नेक्स्ट इंट फिर से इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, ठीक है, रीड करने के लिए। इतना समझ गए? आपने क्या किया? पहले आपने एक एरे डिक्लेयर किया, फिर इसके साथ साथ आपने एरे का साइज भी ले लिया यूजर से। पहले साइज लिया, उसके बाद फिर एरे बनाया, उसके बाद फिर एरे के एलिमेंट्स रखवा लिए यूजर से। अब क्या करना है हमें? जो वैल्यू हमें खोजनी है एरे में, मेन काम जो हमारा लीनियर सर्च टेक्निक का जो काम है, एक एक एलिमेंट को सर्च करना है। तो इसके लिए डेफिनेटली आप फॉर लूप यूज करोगे, है ना। तो फॉर लूप यूज करो। तो फिर अब देखो यहाँ पे ध्यान से, फॉर लूप फिर से 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? n-1 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 से लेके जितने आपके एलिमेंट्स हैं, 0 से जितने इंडेक्स तक जा रहा है उतने इंडेक्स तक आप सारे नंबर्स को चेक करोगे। तो अगर आपका कोई भी नंबर एरे के मान लो 0 इंडेक्स पे आपको वो कोई नंबर मिलती है, आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हो अगर वो दोनों सेम हो जाती है तो आप क्या प्रिंट करोगे? आप वो नंबर प्रिंट कर दोगे कि हाँ मुझे ये नंबर मिल गया, और आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। क्योंकि अब तो लूप में वापस जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो मिल गई ना वो वैल्यू। आपको उस वैल्यू से मतलब है आपने वो वाली वैल्यू प्रिंट करा दी और आप लूप से बाहर आ गए। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है, मतलब कि आपने कहाँ तक सर्च कर लिया, मान लो कि आपके एरे का साइज कितना है? 4, तो आप कहाँ से कहाँ तक सर्च करोगे? लेट मी टेल यू। तब आप 0 से लेके 3 तक सर्च करोगे, है ना। 0 से कहाँ तक सर्च करोगे? 0 से 3 तक सर्च करोगे, क्योंकि आपका साइज कितना है? आपका एरे का साइज 4 है, तो आपका इंडेक्स 0 से लेके 3 तक जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपने थर्ड इंडेक्स तक तो चेक कर लिया। अब जब आपका एरे आई जे का साइज कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। आई मीन जे का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट होता जाएगा। जब 0 था तो ये पार्ट को एग्जीक्यूट किया, अगर ये वाली वैल्यू नहीं मिली तो वो आगे फिर से नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। फिर 1 बन गया इसका वैल्यू, फिर से एग्जीक्यूट, फिर 2, फिर 3। मान लो कि 4 अभी तक आपको नहीं मिली है, ये वाली वैल्यू आप चेक करते जा रहे हो, अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी इस लूप से आप बाहर नहीं आ पाओगे।
तो मान लो कि अब आपका वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि आपके एरे का साइज भी कितना है, 4 है। कंडीशन क्या था कि इससे कम होना चाहिए। तो अब क्या करोगे आप, अब आप इस लूप से फाइनली बाहर आ जाओगे क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास ये कंडीशन दी हुई है कि अगर अब आपने सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए, यानी कि अब जे का वैल्यू क्या हो गया आपका, 4 हो गया, साइज के इक्वल हो गया, मतलब और कोई एलिमेंट बचे ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि आपने सारे एलिमेंट छान मारे लेकिन आपको वो एलिमेंट नहीं मिला। तो बस यही है, और ये रहा इसका आउटपुट। जैसे कि आपको 2 एलिमेंट्स प्रिंट कराने थे, 1 और 2 है इसके अंदर। आपको चेक करना है कि 4 प्रेजेंट है या नहीं, तो आपने चेक किया लीनियर सर्च टेक्निक से, पहले इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर आपको नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट। अब ये वाला जो प्रोग्राम है इसको आप वीडियो पॉज करके ध्यान से एक बार रीड करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है। पहले तो आपको एक क्लास बनाना है, उसके बाद एक एरे डिक्लेयर करना है जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का हो और इसका साइज कितना हो, 10, यानी कि आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है, ये सारी चीजों पे आपको मार्क्स मिलेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इस एरे के अंदर आपको कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करवाने हैं, यानी कि यूजर एंटर करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दिया, यानी कि पहले तो आपने एक एरे डिक्लेयर किया, उसका साइज डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का एरे, उसके बाद उसका साइज 10, उसके बाद आपने इसके अंदर सारे के सारे 10 एलिमेंट्स एंटर करवा लिए। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स में से आपको सर्च करना है कि इसमें से कौन से लेटर्स या फिर कौन से कैरेक्टर्स अपर केस में है, और जो है उनको काउंट करके आपको प्रिंट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, काउंट करना है कि कौन से एलिमेंट्स वॉवल्स हैं, और फिर उनको क्या करना है, आपको काउंट करके प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे करें इस चीज को। पहले तो इंपोर्ट ये वाला स्टेटमेंट आपको सारे प्रोग्राम्स में लिखना है जहां जहां पे आप स्कैनर क्लास यूज करोगे। फिर आपने क्लास बनाया। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि क्लास का नाम मैंने मेन क्यों रखा है, ये मेन मेथड नहीं है, ये एक आइडेंटिफायर है। मैं चाहूँ तो मैं GAP गैप भी लग सकती हूँ, लेकिन G कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जब मैं स्मॉल MAIN लिखूँ और फिर मैं ब्रैकेट्स लगा दूँ तब वो फंक्शन होगा, तब वो कीवर्ड होगा, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, केक नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए ये एक क्लास अब कंसिडर होगा, ये एक आइडेंटिफायर है। क्लियर। इसके बाद मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स यूज किया, जैसे कि आप सबको करना है, स्ट्रिंग का S कैपिटल होता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। फिर देखो स्कैनर S इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप SC की जगह और भी कुछ यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो आप SC ही यूज करो। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मैंने S यूज किया, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इसके बाद मैंने दो वैल्यूज रखी, दो वेरिएबल्स रखी, एक तो काउंट है जो कि काउंट करेगा कितने लोअर केस लेटर्स हैं, और दूसरा काउंट करेगा कितने वॉवल्स हैं। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं यूजर को क्या कह रही हूँ, मैं यूजर को कह रही हूँ कि 10 कैरेक्टर्स एंटर करो। ठीक है, मैं यूजर को कह रही हूँ कि 10 कैरेक्टर्स एंटर करो। अब इससे पहले मुझे क्या करना है, मैंने तो अभी तक एरे बनाया नहीं, तो मैं जल्दी से कैर डेटा टाइप का एरे बना देती हूँ। ये वाला जो ब्रैकेट है ये आप ए के बाद भी डाल सकते हो या फिर ए के पहले भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी शो इट क्लियरली, आप इसको कैसे भी एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि कैर ए ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर और कैसे लिख सकते हो, कैर ब्रैकेट फिर ए डालो। ये दोनों ही चीजें सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, हमने ये वाली पार्ट भी कर ली, फिर हमने 10 साइज डिक्लेयर कर दिया एरे का। इस चीज को स्किप मत करना क्योंकि इस चीज में भी आपको मार्क्स मिलेगी। इसके बाद अब आप क्या करोगे, एक एक करके एरे के सारे वैल्यूज एंटर करवाओगे, क्योंकि ये कैर टाइप का है तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, क्योंकि जब भी आपको किसी कैरेक्टर एरे के अंदर वैल्यू एंटर करानी है, ठीक है, जब किसी कैरेक्टर एरे के अंदर यानी कि 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे कोई एरे है, तब में आपको कैरेक्टर्स रखने हैं, तब आप क्या यूज करोगे, तब आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे। एस डॉट एस क्या है, स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट यूज किया जाता है, और फिर क्या, नेक्स्ट जो वैल्यू आप लोगे उसको आप क्या करोगे, कैरेक्टर वाले एरे में आप पुट करते जाओगे, यानी कि 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, यानी कि आप जो लगातार वैल्यूज एंटर करोगे ना, वो जैसे कि आपने पहले, चलो मैं आपको एग्जांपल ही दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या वैल्यूज रखी थी, ए बी सी डी लाइन से रखी है, तो बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर करेगा ए 0 पे है, बी 1 पे है, सी 3 पे है, ऐसे। समझ में आई बात, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब बस आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही लिख देना है जब आप कैरेक्टर एरे यूज करोगे। ठीक है, फिर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, अब आपको प्रिंट कराना है कि आपके कौन से एलिमेंट्स आपने यूज किए। यहाँ पे अगर आप ब्रेस नहीं भी यूज करते हो तो भी प्रोग्राम चलेगा, अगर करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है तो यहाँ पे ब्रेस लगाओ या मत लगाओ कोई बात नहीं। जैसे कि इफ में अगर बस एक ही मुझे
इफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ऐसे एक सिंपल स्टेटमेंट है तो फिर वो चल जाएगा। एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर आपको कंपाइलर एरर मिलेगा। तो आप चाहो तो ऐसे ब्रेस लगा भी दो फॉर के बाद, आपकी मर्जी। मैंने रन किया है प्रोग्राम, चला भी है, आउटपुट भी आया है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स से लेके मैं कहाँ तक चलाऊंगी, 9 तक, क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स 0 से 9 तक चलेगा। अब सारे एलिमेंट्स में क्या करूंगी, जो जो मैंने एंटर करवाए हैं सारे मैं प्रिंट करवा दूंगी। तो चलो देखो मैंने कैसे प्रिंट करवाया। मैंने सारे एलिमेंट्स ऐसे यूजर से लिए, उसके बाद फिर सारे लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गए। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया कि 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 पे क्या है, 3 पे क्या है, पूरा 10 तक आपको पता चल गया। 0 से 9 इंडेक्स तक आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, आपको अपर केस लेटर्स फाइंड करने हैं और फिर प्रिंट करने हैं। तो चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। फिर से हम एक एक एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे, क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स 0 से 9 तक जाएगा। अब मुझे ये चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ जिसका डेटा टाइप बूलियन है, मतलब कि ट्रू फॉल्स में आपको रिजल्ट देगा। तो ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि आपका कैरेक्टर जो कि एरे के आई इंडेक्स पे हो, मतलब कि 0 पे इंडेक्स पे पहले चेक करेंगे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, ऐसे इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो अपर केस में है या नहीं। अगर वो अपर केस में है तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ट्रू मिलेगी। तो अगर वो अपर केस में है, ठीक है, तो आपको वैल्यू ट्रू मिली, यानी कि अगर ये ट्रू है यानी कि वो अपर केस है, तो वो क्या करेगा, आपको दिखाएगा स्क्रीन पे फाउंड। अब देखो एक चीज है जो कि मैंने यहाँ पे काउंट करके यूज किया है। ठीक है, जब भी आप कोई काउंटिंग शुरू करते हो, जैसे कि आपके पास 5 एप्पल्स है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास कितने एप्पल्स थे, काउंट से पहले आपके दिमाग में कितना नंबर आता था, 0। यानी कि अभी तक आपने काउंटिंग तो शुरू नहीं करी। फिर आपने पहले तो आपके दिमाग के अंदर अंदर आया 0। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, यानी कि टोटल 4 चीजें हैं। ठीक है, अब आपको ना इसको काउंट करना है। स्टार्टिंग में आपके दिमाग के अंदर कितना था, 0, फिर आपको एक मिला, तो अब क्या इसमें करोगे, 1 ऐड, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कितना है, 1 है करंट में, फिर आप नेक्स्ट वाले नंबर को देखोगे तो आपको एक और मिल जाएगा, तो इसमें एक और 1 ऐड करोगे, मतलब अब आपको कितना मिल जाएगा, 2। वैसे ही इसमें एक और 1 ऐड होगा तो ये 3, फिर ये 4। बस यही चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ काउंट के साथ। ठीक है, तो मैंने काउंट कर लिया टोटल कितने अपर केस लेटर्स हैं। फाइन, फिर मैं प्रिंट करा दूंगी, क्योंकि मैं यहीं पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके काउंट नहीं प्रिंट करा रही, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके साथ आप काउंट को ऐड करोगे। ठीक है, मान लो आपको 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू मिली, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। आपको क्या वैल्यू मिली, ए, एक सेकेंड, ए, ठीक है, फिर आपको क्या मिला, बी। ये दोनों आपके कैरेक्टर के आई मीन आपके एरे के अंदर है, ये दो वैल्यूज, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे। आपने फर्स्ट वाला चेक किया, क्या ये अपर केस में है, नहीं है। सेकेंड वाला चेक किया, क्या ये अपर केस में है, नहीं है। तो हर स्टेटमेंट के बाद अगर आप ये करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए लास्ट में जब सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे, लास्ट तक आप जब आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे कि आखिर टोटल कितना काउंटिंग हुआ, कितने हैं, तो फिर लास्ट में आप प्रिंट कर दोगे, सिंपल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ये वाला प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट आई मीन, यहाँ पे आपको वॉवल्स चेक करने हैं। अब देखो वॉवल्स जो भी आप चेक करोगे नंबर्स, जो वॉवल्स होंगे या तो अपर केस में हो सकता है या तो लोअर केस में, तो बस आप अपर केस वाला ए ई आई ओ यू लिखोगे, तो जो स्मॉल केस में या फिर लोअर केस में है वो वाले तो कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जावा केस सेंसिटिव है, अपर केस और लोअर केस दोनों को डिफरेंटली लेता है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो। पहली बात तो आपका लूप 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा, सारे एलिमेंट्स को चेक करता चलेगा। अगर एक या 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ए हो या ई हो या आई हो या यू हो या फिर कैपिटल फॉर्म में हो, यानी कि इसमें से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो, मैंने यहाँ पे और स्टेटमेंट यूज और ऑपरेटर यूज करी हो, यानी कि इसमें से कोई भी एक भी अगर ट्रू हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि वॉवल प्रेजेंट है ना। 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू मान लो कि वो इसमें से कोई भी एक हो, मतलब कि वॉवल है, वॉवल का एग्जिस्टेंस है, और अगर वॉवल का एग्जिस्टेंस है तो वॉवल में +1 हो जाएगा। इनिशियली वॉवल की वैल्यू 0, फिर उसमें अगर एक मिला तो एक प्लस कर दो, फिर अब वॉवल 1 हो गया ना, तो अब एक और मिला तो उसमें एक और ऐड कर दो, फिर 2 हो गए। तो ऐसे करके आप लास्ट में टोटल जितने वॉवल्स है उतना प्रिंट करा दोगे। तो बस कुछ ऐसे ही आपको ये प्रोग्राम ध्यान से देखना है। फर्स्ट पार्ट तो हमें समझ में आ गया, वॉवल्स देखो बस ए ई यू था, तो कितने वॉवल्स थे हमारे पास, 3 वॉवल्स थे। और सिमिलरली अपर केस का भी देखो एकदम एग्जैक्ट आपको आउटपुट मिला है। तो दीज थिंग्स आर सो मैजिकल, बिना बिना मेहनत किए बस प्रोग्राम के दम पे आप इतना कर सकते हो। ठीक है,
अब जो ये वाला क्वेश्चन है, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से रीड करो, पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें फिर से आपको एक क्लास बनाना है, फिर आपको एक एरे डिक्लेयर करना है जिसका डेटा टाइप डबल हो। देखो सब चीजें पहले से ही बता दी गई हैं, और 20 साइज का हो, इसमें आपको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं। 10 मार्क्स का है तो एटलीस्ट भी 2-3 मार्क्स तो आप इधर ही से स्कोर कर लोगे अगर इन सारी चीजों को अच्छे से परफॉर्म करते हो। फिर बाद का जो कैलकुलेशन है वो तो अलग चीज है, लेकिन इसी में आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे टॉप के ही स्टेटमेंट में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो इन चीजों को। इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्कैनर क्लास को अच्छे से पकड़ के चलो तो बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बाकी चीजें करने भी नहीं आ रही, ऊपर के ही पार्ट में आप 10 में से 3-4 नंबर ऐसे उठा लोगे, तो बाद में अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर लॉजिक आता है तो इधर उधर जैसे तैसे करके अगर प्रोग्राम कर लेते हो तो 5 से 6 नंबर तो आराम से उठ जाएंगे, है ना। तो फिर एटलीस्ट कुछ मार्क्स मिलेगा, नहीं से एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान दो, तो अगर ध्यान दोगे तो फुल 10 में से 10 भी मिल सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आपको इनपुट लेना है यूजर से। ठीक है, इसके बाद अब आपको इन सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है और इसमें से हाईएस्ट वैल्यू प्रिंट करानी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक इसमें समझने की जरूरत है। सेकेंड पार्ट में पहले तो हमने बाकी प्रोग्राम्स की तरह इंपोर्ट किया इस पैकेज को, फिर क्लास बनाया, फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेंस किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, स्कैनर एससी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक एरे डिक्लेयर किया डबल डेटा टाइप का जिसका साइज 20 है जैसे कि क्वेश्चन ने कहा। ठीक है, तो मतलब कि 0 से लेके 19 इंडेक्स तक जाएगा। अब हम क्या कहेंगे यूजर को कहेंगे कि तुम 20 डबल वैल्यूज एंटर करो। और जो अभी देखो ये सम वाला चीज पर भी ध्यान मत देना, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आखिर ऐसे क्यों लिखा है। अब इस चीज पर पहले ध्यान दो। फॉर लूप में अब हम सारी चीजों को क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपके पास डबल वैल्यू है, अगर आपको स्कैनर क्लास से लेना है तो बस आप इंट की जगह डबल डाल दो और डी कैपिटल हो जाए, बस वही कंडीशन है। अगर आपने स्टार्टिंग का ध्यान दिया हुआ होगा तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको सारी चीजों का सम निकालना है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई चीज को काउंट कर रहे हो, जैसे कि आपके पास 5 एप्पल्स है, तो स्टार्टिंग में काउंट करने से पहले आपके पास कितने एप्पल्स है, आपने कितना काउंट किया, 0। तो आपने एक एप्पल काउंट किया तो इसमें एक प्लस कर दो। फिर अब आपके पास टोटल कितने एप्पल्स हो गए, 1। अब एक और एप्पल आपको मिला तो उसमें एक और ऐड कर दो, तो मतलब आपके पास अब कितने एप्पल हो गए, 2। अब 2 एप्पल है, अब 2 में से एक और एप्पल कहीं और मिल गया तो फिर कितना हो गया, 3। मतलब कि आपको स्टार्टिंग में कितना वैल्यू रखना है, 0। फिर 0 में ऐड करते जाना है जितना आपको मिलते जाए। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही करना है ना, आपको स्टार्टिंग में जब आपने एक भी एलिमेंट का सम नहीं निकाला है तो आपके पास सम कितना होगा, 0 होगा। लेकिन क्योंकि ये डबल वैल्यू है तो इसका फॉर्मेट क्या रखा जाएगा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0.0 होगा। अब समझ में आ गई बात। अब एक एक करके सारे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करो, उसमें ऐड करो। पहले तो सम का वैल्यू 0.0, फिर जब एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू उसके साथ इसको जोड़ दो तो आपको एक वैल्यू मिल गई। फिर नेक्स्ट इंडेक्स वाले के साथ इस चीज को जोड़ते जाओ और लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अब इतने बेवकूफ तो कोई भी बच्चे नहीं होंगे जिनको ये प्रोग्राम का इतना पार्ट समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तभी भी आप पूछो। ठीक है, नहीं समझ में आई तो अभी भी आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। टेलीग्राम पे मैसेज कर दो या फिर आप यूट्यूब के भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि आपके इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूं। ठीक है, और मेनली मतलब आपको ये सारे प्रोग्राम्स को लिख करके प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट कंप्यूटर में मत करना क्योंकि आपको एग्जाम के लिए करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट ढूंढना है। तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने क्या किया, अब ग्रेटेस्ट किस में खोजना है, मुझे एरे के सारे एलिमेंट्स में खोजना है। जैसे कि मेरे पास एरे में 1.0 है, 3.9 है, 5.7 है। ठीक है, 3 वैल्यूज है, इसमें से मुझे हाईएस्ट ढूंढना है। तो मुझे अभी स्टार्टिंग में तो पता नहीं है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो अभी जब तक मैंने बाकी वैल्यूज नहीं देखी मेरे लिए हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, मेरे लिए हाईएस्ट वैल्यू तो स्टार्टिंग का ही वैल्यू होगा ना। मैं क्या सोचूंगी कि जब तक मैं इस हाईएस्ट वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करूंगी, स्टार्टिंग में तो मेरे लिए यही वाला हाईएस्ट होगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो आपके पास जो भी ऑप्शन है, आप जो भी कर रहे हो आपके लिए वही बेस्ट है ना। तो बस वही कुछ है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आपके पास जैसे कि 1.0 है, अब आप क्या करोगे, अब आपके पास ग्रेटेस्ट में तो ये है, अभी स्टार्टिंग में आपके पास आपने और कोई वैल्यू तो चेक नहीं की, इसलिए मैंने इनिशियली आरे का 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसी को ग्रेटेस्ट पे रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो आपका ग्रेटेस्ट का वैल्यू क्या है, 1.0, इसको चेक करेंगे एरे के 0 इंडेक्स पे, यानी कि यही वाली वैल्यू से कि ये वाला ग्रेटेस्ट वैल्यू से बड़ा है या नहीं। तो बड़ा तो नहीं है। ठीक है, एरे का जो वैल्यू है क्या वो बड़ा है 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी गई है ग्रेटेस्ट से, नहीं है।
तो ग्रेटेस्ट का जो वैल्यू पहले था वो अभी भी रह जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में जब आप इस पे आओगे तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू क्या है 1.0, तो दोनों को कंपेयर करो, क्या ये वाली वैल्यू बड़ी है ग्रेटेस्ट से? जी हाँ बिल्कुल बड़ी है। तो ग्रेटेस्ट अब क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट में अपडेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो अब देखो ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या थी 3.9, इसको कंपेयर करेंगे 5.7 से। बड़ा कौन है 5.7, तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.7। बस यही करते रहेंगे और लास्ट में जब आपके सारे कंडीशंस चेक हो जाएंगे, सारे इंडेक्स तक जब आप चेक कर लोगे तो फिर आप ग्रेटेस्ट वैल्यू को क्या करोगे, प्रिंट करोगे, क्योंकि आपको हर स्टेप पे दूसरा ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंचोगे आप कैसे बोल सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो बस इतने सारे 20 वैल्यूज हमने प्रिंट कराए हैं, मतलब इतने सारे 20 वैल्यूज एंटर कराए, इनका सम देखो ये रहा और इनमें से ग्रेटेस्ट ये रहा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन से कि वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को रीड करो और फिर करेंगे ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट। गाइस आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को। एक क्लास बनाना है जिसके अंदर आप दो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे आपको एरे नहीं डिक्लेयर करना है या फिर एरे का वैल्यू आपको नहीं लेना है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का वैल्यू लेना है। जैसे कि आप लिखना चाहते हो APPLE एप्पल और दूसरा स्ट्रिंग बनाना चाहते हो माई नेम इज अनलिमिटेड लर्निंग। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स हो गए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। अब स्ट्रिंग का कितना भी लेंथ हो सकता है ना, कोई लंबी लाइन भी हो सकती है, पैराग्राफ भी स्ट्रिंग के ही अंदर आएगा। तो आपको क्या चेक करना है, फिर आपको चेक करना है कि आपके पास जो वैल्यू है क्या वो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो स्ट्रिंग्स है उसको कन्वर्ट करेंगे अपर केस में, फिर जो कन्वर्टेड वैल्यू है इन दोनों को चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे कि अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे वो वैल्यू, वो स्ट्रिंग का लेंथ, वो स्ट्रिंग को जिसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा। लेंथ समझ में आती है, मतलब उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग के अंदर 5 कैरेक्टर्स है, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आपको पता है। जैसे कि APPLE एप्पल, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स में कितने होते हैं, GRAPES 6 होते हैं। तो ज्यादा बड़ा लेंथ किसका होगा, ग्रेप्स का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रिंट कराना है। और अगर दोनों का सेम है तो आपको क्या लिखना है कि दोनों का लेंथ सेम है। तो इसका प्रोग्राम देख लो। सबसे पहले तो स्कैनर क्लास, ठीक है, इंपोर्ट करना है इस पैकेज को, फिर क्लास बना दो, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्कैनर SC। अब दो स्ट्रिंग्स मैंने इनिशियलाइज किया। ठीक है, एक तो स्ट्रिंग 1 फिर दूसरा है स्ट्रिंग 2। ध्यान देना, आई होप अब क्लियरली दिख रही होगी आपको, राइट। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट जूम। देखो अब क्लियरली दिख रही होगी, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पहली बात तो यूजर को बोलना है कि पहला स्ट्रिंग एंटर करो। तो स्ट्रिंग एंटर करने के लिए क्या करते हैं बताओ, नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। याद रखना, भूलना मत, जब भी स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करनी है तो क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन, एल का लाइन का L कैपिटल। जब भी एरे डिक्लेयर करेंगे, आई मीन जब भी कैर डिक्लेयर करेंगे तो क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट, उसके बाद डॉट कैर एट। ठीक है, कैर एट जो भी। इसके बाद देखो दूसरे वाले को भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू इसकी ले लेंगे यूजर के थ्रू। इसके बाद हम इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपर केस में। तो दूसरा मैंने दो स्ट्रिंग्स ले लिया, एक str1 और str2। तो s1 को मैं चेंज कर रही हूँ अपर केस में, टू अपर केस का काम है इन दोनों को चेंज करना अपर केस में। फिर मैं प्रिंट करा दे रही हूँ, स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू इस फॉर्म में थी, अब देखो अपर केस में कैसे दिख रही है। ठीक है, इसका काम यही है। इतना आपको समझ में आ गया। इतना आप आराम से, इतने में आप आराम से कितने मार्क्स स्कोर कर लोगे, 2 से 3 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट 3-4 मार्क्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद अब आपको चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, दोनों इक्वल है या नहीं, यानी कि दोनों का लेंथ ढूंढना है आपको। तो याद रखना है, जब भी हम लोग स्ट्रिंग्स का जब भी लेंथ निकालते हैं, एरे का नहीं, स्ट्रिंग्स का जब भी लेंथ निकालते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग में 5 अल्फाबेट्स हो या 5 लेटर्स हो, कितना भी हो, जब भी उसका लेंथ निकालेंगे हम लोग क्या यूज करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, देखो ध्यान से। हम लोग ये वाला लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि लेंथ लिखने के बाद आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाओगे। ठीक है, लेकिन जब भी आप एरे का लेंथ ढूंढोगे, चाहे वो एरे स्ट्रिंग एरे हो, कैरेक्टर एरे हो, न्यूमेरिक एरे हो, डबल एरे हो, कोई भी टाइप का एरे हो, उसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग बस LENGTH लिखेंगे। इसके आगे ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। ठीक है, समझी मेरे बात को। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले
एक्स वेरिएबल के थ्रू हम लोग S1 का लेंथ str1 का लेंथ निकाल लेंगे। जो हमने क्या str1 क्या है, ये क्या स्टोर कर रहा है बताओ मुझे, अपर केस फॉर्म ऑफ S1, जो हमने स्ट्रिंग एंटर किया था उसका अपर केस फॉर्मेट स्टोर करेगा, ठीक है। और y क्या स्टोर करेगा, str2 का लेंथ स्टोर करेगा, ठीक है, उसका लेंथ कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। अब इसके बाद चेक करेंगे कि अगर दोनों इक्वल है, दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो प्रिंट कराओगे कि दोनों स्ट्रिंग्स का इक्वल लेंथ है। लेकिन अगर दोनों कैरेक्टर्स का लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि अब अगर ऐसा कंडीशन आता है कि x का लेंथ बड़ा हो y से, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, str1, यानी कि str1 क्या है, str1 तो वो स्ट्रिंग है जिसका लेंथ क्या है x, ठीक है। मतलब कि अगर str1 का अगर ज्यादा लेंथ है तो आप क्या प्रिंट कराओगे, डेफिनेटली आप ये कहोगे ना, आप क्या डिस्प्ले करोगे। अगर आपके पास एप्पल है और ग्रेप्स है, तो आप अगर एप्पल का लेंथ कम है ग्रेप्स से, तो आप क्या प्रिंट कराओगे स्क्रीन पे, ऑब्वियसली ग्रेप्स प्रिंट कराओगे, है ना। तो वही चीज कर रहे हैं, अगर x का लेंथ बड़ा है y से, क्योंकि x किसका लेंथ है, str1 का, तो str प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ये कौन सा ऑपरेटर है बताओ, ये वाला ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि ये चेक करेगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकेंड वाला कंडीशन प्रिंट करेगा। और इसके बीच में ऐसे लगता है कंडीशन के बाद आप ऐसे क्वेश्चन मार्क डालते हो, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 लिखते हो, और यहाँ पे आप कंडीशन डालते हो जो भी आपका कंडीशन है, ठीक है। तो बस आपको ये करना है, और फिर जो भी आपका लार्जेस्ट स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करा दो। जैसे कि आपने क्या एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिया है, एक तो आपने एग्जाम्पल ले लिया है एंटर स्ट्रिंग एप्पल, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने क्या ले लिया, नेक्स्ट आपने ले लिया मैंगो, क्लियर। इसके बाद आपने क्या ले लिया, एप्पल इन अपर केस में क्या होगा, APPLE एप्पल, मैंगो इन अपर केस MANGO। अब दोनों स्ट्रिंग्स क्या इक्वल है, नहीं है, ऑब्वियसली एप्पल अलग है मैंगो अलग है, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या है, बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, क्लियर। बस हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पिग लैटिन नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, वो भी करेंगे। पहले तो आप पैलिंड्रोम को अच्छे से पकड़ के रखो, इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, क्योंकि ये स्पेसिमेन चीज है, तो इसको जब आप क्लियर कर लोगे, अपने दिमाग के अंदर इस चीज को क्लियर कर लोगे, तो वो चीज भी समझ में आ जाएगी। वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको समझने की कोशिश करो कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। So guys, I would like to give a shout out to आयुष रॉय, alright। तो अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में पहले तो आपको एक क्लास बनाना है, फिर आपको एक स्ट्रिंग, यानी कि इसमें बस एक स्ट्रिंग की बात की जा रही है, फिर स्ट्रिंग को क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, फिर चेक करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब जैसे कि MADAM है ना मैडम, इसको पीछे से लिखने की कोशिश करो, पहले M लिखो, फिर A लिखो, फिर D लिखो, फिर A लिखो, फिर M लिखो, क्या मिलेगा, सेम चीज मैडम ही मिलेगा। जैसे पैलिंड्रोम नंबर्स होते थे ना 101, इसको पीछे से रिवर्स साइड से लिखो तो भी ये 101 ही मिलता था, वैसे ही मैडम भी आपको मैडम मिलेगा, तो इन्हें कहते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास, ठीक है, उसके बाद फिर पब्लिक क्लास, ठीक है, जो भी क्लास है, उसके बाद फिर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। फिर हमने एक स्ट्रिंग बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था एक स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। फिर इस स्ट्रिंग का वैल्यू कैसे लोगे, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, जैसे कि मैंने आपको समझाया, जब भी स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है नेक्स्ट लाइन का यूज करोगे। SC क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक रिवर्स स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग का काम क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आपको RAR है आपके पास, ठीक है, क्या है आपके पास, RAR। अब आपको क्या करना है, इसको आपको चेक करना है ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो पीछे एकदम लास्ट में जो R है उसको पहले लिखो, फिर उसके बाद A लिखो, फिर R लिखो, तो क्या ये दोनों चीज सेम है, जी हाँ बिल्कुल सेम है। यानी कि आपको रिवर्स से लिखने के लिए भी तो कोई मतलब कोई रिवर्स, इसका रिवर्स, ये वाले स्ट्रिंग का रिवर्स स्टोर करने के लिए भी तो आपको कोई वेरिएबल चाहिए, तो वही वेरिएबल हम लोग वो वेरिएबल के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, REV रिवर्स। इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यू इंट का क्या होता है, जीरो होता है, डबल का क्या होता है 0.0, जो कि मैंने आपको समझाया था। वैसे ही REV का क्या होगा, REV का इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं होगा, बस आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, ठीक है।
अगर मैंने कोई भी चीज़ बोलने में मतलब कोई चीज़ अगर मैंने गलत बता दी हो अभी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी मैं आपको जो भी बता रही हूँ उस पर ध्यान देना अच्छे से। अभी तक मैंने कुछ भी वैसे गलत नहीं बताया, अगर गलती से कहीं पे टंग स्लिप हो गया तो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट हाँ ध्यान देना। मैंने क्या किया, मैंने इसको इनिशियल वैल्यू दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इस चीज को पहले हटा दो आप, रिवर्स स्ट्रिंग को भी दिमाग से हटा दो, अभी हटा दो कि ऐसा कुछ था भी। अब जो हमने S1 एंटर कराया था यूजर से, इसको क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, स्ट्रिंग वेरिएबल str1, जो कि क्या करेगा, इसको लोअर केस में कन्वर्ट जब करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उससे str1 स्टोर करेगा, और बस इसे ऐसे प्रिंट करा देंगे, ठीक है, लोअर केस फॉर्मेट में। अब आता है आपके रिवर्स का काम, कि भाई रिवर्स का काम कहाँ पड़ रहा है मुझे। तो पहले जो आपका str है, जो कि आपने लोअर केस में चेंज किया था, ठीक है, जैसे कि चलो एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आर है, ठीक है, इसको उल्टा लिखोगे, लास्ट वाला आर फिर ए फिर कैपिटल आर, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है। इसलिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप पहले इसको लोअर केस में बदलो, ताकि आपका ये जो वैल्यू, मान लो कि स्टार्टिंग में कैपिटल आर हो, तो आपका इसको लोअर केस में चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, सारे के सारे कैरेक्टर्स, पूरा स्ट्रिंग ही आपका लोअर केस में चेंज हो जाएगा। फिर आप इसको उल्टा करोगे तो आपको, अगर उल्टा करोगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको परफेक्ट वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? अब देखो, इसको आपको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे str1 यूज कर रहे हैं। तो पहले आप str1 का लेंथ निकालो, क्योंकि str1 एक स्ट्रिंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। फिर इसका इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, देखो मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स करना है। किसको रिवर्स करना है? आर को करना है रिवर्स। तो ये वाला जो आर है, ठीक है, मान लो इधर लिख देती हूँ मैं, आर ए आर, ठीक है। तो ये वाला जो आर है, इसका इंडेक्स क्या होगा बताओ, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 0 है। मतलब मुझे इसे उल्टा करना है, तो मुझे डेफिनेटली सेकेंड वाला इंडेक्स पहले लिखना है, फिर ए वाला इंडेक्स पहले लिखना है, फिर आर लास्ट वाला है, मतलब कि 0 इंडेक्स को ऐसे लिखना है। मतलब मुझे कौन सा पकड़ना है बताओ, मुझे कौन सा इंडेक्स पकड़ना है, मुझे लास्ट वाला इंडेक्स पकड़ना है। तो इसका जितना लेंथ होगा उसमें अगर 1 माइनस कर दोगे, मान लो कि इसका लेंथ कितना है 3, तो इसका आखिरी इंडेक्स कितना है 2, ठीक है। लेंथ माइनस 1 करोगे मतलब आपको आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा। तो अगर आप आखिरी इंडेक्स दे दोगे लूप को, तो आपका लूप कहाँ से स्टोर करना शुरू करेगा, यहाँ से एक्सेस करना शुरू करेगा, लास्ट से एक्सेस करना शुरू करेगा, ठीक है, ये वाले इंडेक्स से एक्सेस करना शुरू करेगा वैल्यू। तो देखो ध्यान से, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, और ये कहाँ तक चलेगा, जब तक आपकी वैल्यू 0 ना हो जाए, बस 0 तक, क्योंकि आपका लीस्ट कितना इंडेक्स आप ले सकते हो, 0 इंडेक्स, और ये माइनस होते जाएगा। यानी कि पहले आपका अगर यहाँ पे लेंथ कितना है, हाईएस्ट लेंथ 2 है, फिर 2 है, तो फिर ये वाला काम करेगा, उसके बाद फिर क्या बनेगा 1, फिर 1 के लिए फिर ये वाला काम करेगा, फिर 0 हो गया। फिर अब जब 0 से कम हो गया, क्योंकि 0 से कम इंडेक्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फिर ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लूप बाहर आ जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ, इसके अंदर मैं इसमें ना रिवर्स स्टोर कर रही हूँ, इसका मतलब लास्ट से सारी चीजें एक एक करके स्ट्रिंग को मैं इसमें लगाते जा रही हूँ। तो रिवर्स में क्या है, रिवर्स में मैंने आपको बताया कि रिवर्स खाली है, रिवर्स के अंदर कुछ था, बस डबल कोटेशन भरे हुए थे। एक बार फिर से दिखा दूं, देखो रिवर्स के अंदर कुछ है, बस डबल कोटेशन है, क्योंकि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए, इसलिए मैं उसको ऐसे रख रही हूँ, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अगर मैं रिवर्स ना लिखे बस ये लिखूं, तो अभी वाले स्ट्रिंग के लिए, अभी वाले स्ट्रिंग के लिए, यानी कि फर्स्ट वाला प्लेस पे मान लो ये वाला वैल्यू ले रहे हैं, तो अभी के टाइम पे रिवर्स कितना रखेगा आर, फिर सेकेंड टाइम में जब लूप चलेगा तो ये वैल्यू तो गायब हो जाएगी ना। इसीलिए मैं रिवर्स यूज कर रही हूँ, ताकि पहले का जो वैल्यू, जो आप इधर ऐड करते करते जो वैल्यूज रखते जाओ, वो इधर क्या हो जाए, इसके साथ जुड़ते जाए। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, APPLE एप्पल, ठीक है, पीछे वाला इंडेक्स ई है। फर्स्ट टाइम ने आपने क्या किया, देखो ऐसे था, ठीक है, प्लस ई, इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये आपको ई ही देगा। फिर अब नेक्स्ट वाले में आपको क्या मिला, ई के बाद आपको क्या मिला, अब नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे तो एल मिलेगा, तो एल के साथ जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, एल के साथ जब जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा ई एल, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपके पास ई एल तो रेडी हो गया, ई एल तो है आपके पास। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, पी, तो क्या मिलेगा आपको, ई एल पी। तो ऐसे ही आपको करके पूरा लास्ट का कंप्लीट करना है, बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गई। अब जब आप पूरा कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि ई, चलो मैं लिख देती हूँ फाइनल आपको इसमें क्या मिलेगा, लिख देती हूँ वरना फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। ई एल, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, नीचे एकदम देखो, ई एल पी पी
ए, एल्पा, ठीक है, एल्पा मिला। तो क्या एल्पा एप्पल के इक्वल है, यानी कि जो स्ट्रिंग वन था क्या, एप्पल, और क्या जो उसका रिवर्स है वो दोनों सेम है, सेम है, तो ये पैलिंड्रोम है, अगर सेम नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। सिंपल सा स्टेटमेंट, समझ में आया होगा। आउटपुट देखो, जैसे कि आपने रेस कार लिखा है, तो इसको अगर आपने पहले इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर लोअर केस में नहीं करते तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, फिर आपका सब चीज तो वैसे लिखा था, बस ये वाला आर इधर आ जाता और आखिरी वाला आर कैपिटल इधर हो जाता। तो क्या ये दोनों चीज सेम होती, नहीं होती। मैं क्या कह रही हूँ मैं बता देती हूँ, स्मॉल आर ए सी ई सी ए आर, तो क्या ये दोनों सेम है, ये रेस कार और ये रेस कार, नहीं, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है तो गलत हो जाता, फिर आपको पैलिंड्रोम नहीं मिलता। इसीलिए हमने क्या यूज किया, हमने लोअर केस वाला स्ट्रिंग यूज किया, इसको कंसिडर किया। अब ये वाला प्रोग्राम देखो, ये वाला प्रोग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक यूज किया जा रहा है। एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और एक बार क्वेश्चन रीड करो कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो गाइस क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ा तो समझ में आया। एक हम लोग को क्या करना है इसके अंदर, हम लोग को इसके अंदर एक एरे डिक्लेयर करना है जिसके अंदर 10 स्ट्रिंग हो। अब इसको कैसे समझे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि आपको एक एरे डिक्लेयर करना है जिसका नाम ARR है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने वैल्यूज आपको रखने हैं बताओ, 10 वैल्यूज रखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो बताओ, एक सेकेंड। हाँ, आपको एरे के अंदर कितने कितने वैल्यूज रखने हैं, 10 वैल्यूज। इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज होंगे जैसे कि APPLE ऐसा कुछ, फिर MAN, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं कुछ भी रख सकती हूँ, मेरी मर्जी। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, ऐसे आप टोटल बहुत सारे वैल्यूज रख लोगे, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे आपको करना है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो, आप सोच रहोगे कि मैं आपको ये प्रोग्राम इतना अच्छे से कैसे समझा ले रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉपी पेस्टेड चीजें नहीं है। मैंने आपको इन सब का कोड दिखाया, इनके आउटपुट खुद से रन की, वो सब चीजें मैंने खुद से की है, इसलिए आपको ये सारे कोड बहुत आसान लगेंगे समझने में भी, और ये कोड है भी काफी इजी और बहुत क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें करना क्या है देखो, हमें एक एरे डिक्लेयर करना है जिसके अंदर 10 स्ट्रिंग्स हो, ठीक है, उसका साइज 10 होगा। और इसके बाद हम लोग को प्रिंट द स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जैसे कि ये वाला एक स्ट्रिंग हो गया, ये वाला एक स्ट्रिंग हो गया, ये वाला स्ट्रिंग हो गया, इसमें से कौन से स्ट्रिंग के पास इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। एप्पल का काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर्स है, ऑड हो गया। MAN 3 है, ऑड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, इवन हो गया, मतलब इसको प्रिंट कराना है, समझ में आई बात। कुछ ऐसे करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्ट java.util.scanner, फिर पब्लिक क्लास, उसके बाद फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया। एक क्लास बना, आई मीन एक एरे डिक्लेयर करेंगे साइज 10 का, इतना भी आप कर लोगे अब तक। इसके बाद हम यूजर को बोलेंगे चलो जल्दी से 10 वैल्यूज एंटर करो, जल्दी से जल्दी 10 स्ट्रिंग वैल्यूज एंटर करो, ठीक है। अब क्या करेगा यूजर, धीरे धीरे करके 10 वैल्यूज एंटर करेगा फॉर लूप के मदद से, नेक्स्ट स्ट्रिंग लाइन के मदद से। क्लियर, नेक्स्ट लाइन के मदद से। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन से कैरेक्टर्स, मतलब कौन से स्ट्रिंग के पास इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो मतलब कि सारे कैरेक्टर्स का मतलब, जैसे कि आपके पास, मैंने देखो छोटा सा एग्जांपल लेना है मैंने यहाँ पे मान लो ए, बस ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो सब समझ में आएगा। ABCDEF, ऑलराइट। मान लो यही 3 वैल्यू लेने से ज्यादा नहीं करेंगे, बस 3 मान लो, बस 3 3 काफी है हमारे दिमाग के लिए। ओके, तो इन तीनों में से चेक करना है कि इसमें से कौन सा के पास इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब कि ये वाला स्ट्रिंग 0 इंडेक्स पे है, फिर ये वाला 1 इंडेक्स पे है, फिर ये वाला 2 पे है। लेकिन अब इसके विद इन 0 इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसको चेक करो, फिर 1 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स, मतलब के लिए इसके लिए ऐसा लूप लगाना पड़ेगा ना जो इस एरे के 0 इंडेक्स पे काम करे, फिर 1 पे काम करे, फिर 2 पे काम करे। तो बस वही वाला काम करेंगे, एक लूप लगा देंगे। इसके बाद एक काउंट करके ऑप्शन रखेंगे। ये काउंट क्या करेगा, पहली बात तो इस काउंट का मेनली काम क्या है, इस काउंट का मेनली काम क्या है, ये आप ये एरे का लेंथ चेक करेगा, ठीक है। 0 इंडेक्स पे जो एरे है उसका लेंथ कितना है। अब क्योंकि देखो, जब भी मैंने आपको अभी तक जितना बार भी पढ़ाया है, एरे का जब भी आप लेंथ ढूंढोगे, आप क्या यूज करोगे, एरे का लेंथ ढूंढने के लिए आप एड डॉट लेंथ यूज करोगे। लेकिन जब भी आप स्ट्रिंग का लेंथ ढूंढोगे, ए क्या है, इंडिविजुअली ए,
क्या है ये स्ट्रिंग। जब इस ए का आप लेंथ ढूंढोगे तो आप जाके ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे। जब आपको एबीसी का लेंथ ढूंढना है, यानी कि एबीसी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तब आप जाके ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे। समझे? बात को समझने की कोशिश करो। इसके बाद आपको सारे उसके जीरो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, आई मीन जो स्ट्रिंग वैल्यू है, उसका आपने लेंथ ढूंढा, ठीक है। तो काउंट क्या स्टोर करेगा, हर इंडेक्स पे जो वैल्यूज है, ठीक है, हर इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग्स है उनका लेंथ ढूंढेगा। इसके बाद ये क्या चेक करेगा, ये कंडीशन लगाएगा कि अगर आपका जो भी लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करो, अगर वो रिमाइंडर 0 देता है तो वो क्या है, इवन है। अगर नहीं देता तो मतलब कि वो ऑड है, ठीक है। तो वैसे जितने भी नंबर्स होंगे जो कि इवन होंगे वो प्रिंट कराता जाएगा स्क्रीन पे। तो इवन ऑड का ये वाला कंडीशन होता है, ये वाला लॉजिक होता है। खुद ही सोचो ना, अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से, या 20 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से डिवाइड करोगे, तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, कुछ बचेगा, 0 मिलेगा रिमाइंडर। और अगर 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी कि जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा तब वो इवन होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जितनी भी बच्चियां हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, सभी बच्चियों का नाम लिख दिया, मैक्सिमम सारे बच्चे कवर्ड हैं। जैसे कि खुशी, मिस्टी, दुर्गा, अस्मिता, हयात, देन अनुष्का, सृष्टि, नैन्सी, यशिता, मनीषा, श्रुति, पूनम, हिमांगी, ऑल द गर्ल्स। और भी जितनी भी गर्ल्स हैं सभी बच्चों का नाम है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से खोजना है कि इसमें से कौन से स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं। तो एक खुशी काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये इवन है। अश्मिता का 1 2 3 4 5 6 इवन है। सृष्टि का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इवन है। नैन्सी का 1 2 3 4 5 6। तो देखा आपने कितना इजी था और कितने अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो गाइज यही था आपके कंप्लीट स्पेसिमेन पेपर में। इसी तरीके से और वीडियोस लेकर आऊंगी आपके हेल्प के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैंने आपके लिए जो भी वीडियो कंटेंट बनाया है गाइज, इसमें बहुत मेहनत लगी है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट में जरूर अनलॉक लिखना। अनलॉक का मतलब क्या, कि आपने ये वाली वीडियो अनलॉक कर दी है, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इतने सारे बच्चों ने ये वाली वीडियो लास्ट तक देखी है, लास्ट तक आपने इस वीडियो को अनलॉक किया है, आपने अपने नॉलेज के पिटारे को अनलॉक कर दिया है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होता है प्लीज कॉन्टैक्ट। ऑल द बेस्ट।